Hello students, this is a 13th chapter organisms and population. In this part of the video we will study about major abiotic factors. In that first we have studied about temperature. Then second major abiotic factor was water. We studied about water. Then we studied about light. Light plays a very important role. We all knew and we have studied about it in deeply. The next factor was soil. Soil also plays a very important role. Various characteristics of soils are soil composition, grain size, determining the percolation and grain size, and water holding capacity of the soil. एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ उसका pH, उसका मिनरल कंपोजिशन, उसका न्यूट्रिएंट कंपोजिशन बोल सकते हैं, या उसका टोपोग्राफी, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है. देन अबायोटिक फैक्टर्स थे. हम लोग ने सॉइल के बारे में पढ़ा. दैट अ सॉइल जो है, abiotic factor that determine the type of the habitat also shows considerable diurnal and seasonal variations. हम लोग ने ये सब पढ़ा. फिर we have studied के during the course of their evolution, पहले हम लोग ने पढ़ा that plants और animals ने बहुत सारी चीज़ें अडेप्ट की है to these changes in order to survive and flourish in the habitat. एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर इवोल्यूशन बहुत सारे स्पीशीज़ ने इवॉल्व किया है, अपने आप को इवोल्यूशन किया है. अ रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट दैट परमिट्स ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन टू प्रोसीड विथ ऑप्टिमम रेट एंड अलाउ द स्पीशीज़ टू फ्लोरिश. फिर उसके बाद वी हैव स्टडीड कि टू सर्वाइव एंड फ्लोरिश इन एन इन्वायरमेंट, organism must adapt to the changes in the environment, and we have studied some possibilities. पहली possibility थी regulate, के organism maintain करते homeostasis को by physiological and behavioral changes which ensure body temperature, constant osmotic concentration, etc. All birds and mammals are capable of such regulation. फिर सेकंड था कन्फॉर्म के बारे में हमने पढ़ा था. कन्फॉर्म क्या है? मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट. उनके वजह से क्या होती है, उनकी जो बॉडी होती है, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बियंट टेम्परेचर. जैसे कि इन एक्वाटिक एनिमल्स the osmotic concentration of the body fluid changes with that of the ambient water osmotic concentration. These animals and plants are simply conformers. Some species has evolved the ability to regulate within a limited range of environmental condition beyond which they simply conform. If the stressful environment is localized or only for a short period of time, the organism may migrate or suspend its activity. ये हो गया सेकेंड पॉइंट. थर्ड हम लोग ने माइग्रेट पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म मूव होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जहाँ पे उनको लगता है कि अब स्ट्रेसफुल हैबिटेट है और वो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो लोग अपने आप को मूव करते हैं टू सम हॉस्पिटेबल एरिया and return when stressful period is over. Many animal birds do this type of migration during winter season. फिर फोर्थ हमने सस्पेंड पढ़ा था. कुछ एनिमल्स अपने आप को सस्पेंड कर देते हैं. सस्पेंड का मतलब कि वो लोग माइग्रेट नहीं कर पाते, तो वो लोग क्या करते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन. इसमें एग्जाम्पल है पोलार बियर. सम स्नेल्स एंड फिशेस गो इनटू एस्टिवेशन टू अवॉइड समर हीट. क्लियर विद दिस.
मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है अडेप्टेशन। द न्यू टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज अडेप्टेशन to cope up with extreme variation in their environment, and some organisms respond through physical adjustment while others do so behaviorally, like migration. These are their adaptation. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम होता है to cope up with extreme variations in their environment. Some organisms respond through physiological adjustment. कुछ ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट करते हैं अपने अंदर फिज़िक्स में, उनकी अपनी फ़िज़िक्स मीन्स उनका फिज़िकल अपीयरेंस में कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं, वाइल अदर्स डू सो बिहेवियरली। कुछ अपना फिज़िकल में एडजस्टमेंट करते हैं तो कोई अपना बिहेवियर में एडजस्टमेंट करता है। बिहेवियर में कैसे, जैसे कि वो लोग माइग्रेट कर दे रहे। अब ऑर्गेनिज्म अपनी फ़िज़िक्स में तो चेंजेस नहीं कर सकते, तो वो लोग अपने बिहेवियर में चेंज करते हैं और वो लोग माइग्रेशन करते हैं। सो व्हाट वी हैव लर्न टू कोप अप with extreme variation in their environment, some organisms respond through physiological adjustment while others do so behaviorally, like migration. इसी चीज़ को बोलते हैं अडेप्टेशन। दिस आर देयर अडेप्टेशन। ये चीज़ को ही हम अडेप्टेशन बोलते हैं। Therefore we can say that adaptation is an attribute of the organism. अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन उनका एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट मीन्स उनकी हैबिट है, उनके अंदर वो चीज़ इनबिल्ड है कि वो लोग अडेप्टेशन करेंगे। वी कैन से दैट, okay, we'll go to the next slide. We can say that adaptation is an attribute of the organism. organism में किस चीज़ का एट्रीब्यूट है? मॉर्फोलॉजिकल, उनका केमिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल चेंजेस that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. जो एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने पे और उधर जाके उसे रिप्रोड्यूस करने पे मजबूर कर देती है। So we can say that adaptation is an attribute to the organism. Attribute means उनका morphological, physiological and behavioral that enables the organism to survive and produce in its habitat. Clear with this? Many desert plants have a thick cuticle on their leaf surface. बहुत सारे डेजर्ट प्लांट है। डेजर्ट प्लांट आर दोज प्लांट विच आर ग्रोन इन डेजर्ट। तो बहुत सारे डेजर्ट प्लांट है विच हैव अ थिक क्यूटिकल, जिनका क्यूटिकल बहुत ज़्यादा थिक होता है। क्यूटिकल क्या होता है? लीव्स पे के सरफेस पे होता है, तो क्यूटिकल उनका बहुत ज़्यादा थिक होता है। और उनका जो स्टोमा होता है, एंड हैव देयर स्टोमा इन डिप पिट्स टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। और उनका स्टोमा एकदम अंदर की तरफ होता है, इन डिप पिट्स। वाई? बिकॉज सो दैट दे कैन मिनिमाइज, वो लोग कम से कम लॉस ऑफ वाटर कर सके थ्रू ट्रांसपीरेशन। दे कैन have their stoma in deep pits to minimize loss of water through transpiration.
Many desert plants have thick cuticle on their leaf surface and have their stomata in deep pits so that they can minimize loss of water. Stomata का क्या काम है? Stomata का वाटर एक्सचेंज का काम है. तो अगर वाटर एक्सचेंज ही नहीं होगा, डीप पिट्स पे जब स्टोमाटा सिचुएटेड है तो वाटर एक्सचेंज नहीं होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस उनका जो लॉस ऑफ वाटर है थ्रू ट्रांसपीरेशन वो बहुत ज़्यादा कम होगा. सो ये एक टाइप का अडेप्टेशन ही है. देन they also have a special photosynthetic pathway. उनके पास एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है जिसे हम लोग कैम्प बोलते हैं. कैम्प इज़ क्रैंजोलीजियन एसिड मेटाबॉलिज्म. दिस कैन बी आस्क्ड इन नीट. कैम्प का फुल फॉर्म. सो कैम्प इज़ क्रैंजोलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म. अब ये क्या करता है? जो स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे है ये क्या करता है? इट अनेबल्स देयर स्टोमाटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम. ये जो स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे है ये स्टोमाटा को डे टाइम में क्लोज रखने के लिए हेल्प करती है. अगर स्टोमाटा दिन में बंद रहेगा तो वाटर अंदर से बाहर जाएगा ही नहीं, जिसके वजह से वाटर सेफ हो रहेगा एंड दैट वाटर कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म. So that's the reason it is a special photosynthetic pathway, that is CAM, which is the transurethrian acid metabolism, that enables their stomata to remain closed during daytime. Then some desert plant like Opentia have their leaf reduced. कुछ plants होते हैं जो कि डेज़र्ट एरिया में होते हैं. डेज़र्ट प्लांट जैसे ओपेंशिया. ये ओपेंशिया क्या करता है? इट हेल्प्स इन देयर लीव्स टू रिड्यूस मॉडिफाइड टू स्पाइन and the photosynthetic function is taken over by the flattened stems. और जो photosynthetic function है वो स्टेम करेगी. उनकी स्टेम बहुत ज़्यादा फ्लैटेंड होती है. तो दिस फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज़ टेकन ओवर बाय द फ्लैटेंड स्टेम. एग्जाम्पल क्या दिया है? सम डेजर्ट प्लांट लाइक ओपेंशिया हैव देयर लीव्स रिड्यूस्ड. जैसे उसे हम लोग मॉडिफाइड बोलते हैं टू स्पाइन and the photosynthetic function is taken over by the flattened leaves. Clear with this? Going to the next para. Mammals from colder in climates. वो mammals जो colder climates में रहते हैं generally have shorter snout. Snout means neck उनका, और शोल्डर्स. उनके पास उनका स्नाउट बहुत ही शॉर्टर होता है. ईयर्स, टेल एंड लिब्स ये सब भी बहुत शॉर्टर होते हैं. Mammals from colder in climate generally have shorter snout, ears, nails and limbs to minimize the loss of body heat. ताकि वो लोग बॉडी हीट को मिनिमाइज कर सके. मिनिमाइज मीन्स कम कर सके. And this is the rule which is given by Allen and it is known as Allen's rule.
In the polar seas, aquatic mammals like seals have a thick layer of fat. पोलार सीज में जो एक्वाटिक एनिमल जैसे कि सील्स ले लिए, अब वो सील्स के पास थिकर लेयर था ऑफ फैट बिलो देयर स्किन एक्टिंग एज एन इंसुलर टू रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट. एक्वेटिक एनिमल्स जैसे सील है, इनके पास थिक लेयर है ऑफ फैट का बिलो देयर स्किन acting as an insulator to reduce loss of body heat, ताकि वो बॉडी हीट को वो लोग कम कर सके, लॉस कर सके. दिस इज़ द डायग्राम. ये कैसे जो डियर है वो फॉरेस्ट एरिया से स्नो की तरफ जा रहे हैं. सी, इसी को हम लोग अडेप्टेशन बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन. इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल. इन नेचर, अगर हम लोग नेचर की बात करेंगे तो नेचर में हम लोग कहीं भी आइसोलेटेड मीन्स अलग एकदम, ऐसे इंसान को नहीं देखे. सिंगल इंडिविजुअल, आइसोलेटेड के अलावा वी हैवंट सीन सिंगल इंडिविजुअल पॉपुलेशन. दे लिव इन ग्रुप्स in a well-defined geographical areas, share or complex. नेचर में क्या होता है, जो फ्रीली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स होते हैं, दे लिव इन ग्रुप्स इन अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया which is then share or complete for similar resources, potentially interbreeded and thus from a population. Although it is an individual programming that has coped with changes in the environment, it is not at the population level than natural selection. They have protect to evolve the undesired rates. Population ecology is therefore an important case of ecology before it links ecology and to produce dynamics, genetics and evolution. पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है इकोलॉजी का. बिकॉज वाई? बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजिकली, वो इकोलॉजिकली मुझे लिंक करना था. एंड देन वी हैव डिसाइडेड to population dynamics, genetics and evolution. I'll repeat this. In nature, we rarely find isolated or single individual. They live in groups in a well-defined geographical area, share or complete for similar resources, potentially interbreeded and thus form a population. Although it is an individual organism that have to cope with changes in the environment, it is all the population level that natural selection operation to evolve the desired trait. Population ecology is therefore an important area of ecology because its ecology to population dynamics, genetics and evolution.
here with this. This is a diagrammatic view of a population. किस तरीके से हर एक एज ग्रुप का पॉपुलेशन बढ़ता है. So, a population has certain attributes of their own, which are different from those of an individual. नेचर के पास खुद के एट्रीब्यूट्स हैं, खुद के पॉपुलेशन के पास खुद के एट्रीब्यूट्स हैं, and that is very different from others. Basic physical characteristics of population are its size and density. क्या साइज़ और डेंसिटी है पॉपुलेशन की, उस पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है. साइज स्पीक्स फॉर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, वाइल डेंसिटी टेल्स अस नंबर ऑफ टाइम. साइज़ बताएगी हमें कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है उस जगह पे, और पॉपुलेशन बताएगा कि वाइल डेंसिटी tells us number of individual present per unit. पर यूनिट में कितने इंडिविजुअल्स है वो हमें पॉपुलेशन बताएगा. सो अंडरस्टूड द टर्म ऑफ साइज एंड डेंसिटी. Besides size and density, the other characteristics include nodality. Nodality means death. Mortality, death. Immigration, emigration, polymerid. Expanding population, population growth. Form, biotic potential. An individual has birth and death, but the population exposure must go on. So students, here we have completed little bit about population. In the next video we will continue with this topic only. Thank you.